tapestry of time, where moments weave eternal memories, and in the theatre evening, where art transcends boundaries and culture paints the canvas of our soul, as the celestial dance of creativity unfolds before us. I, Lakshika Sharma of Class 8 and I, Riddhi Soni of Class 8, on behalf of Aditya Birla Higher Secondary School, welcome the dignitaries, the parents and the students to immerse yourself in a symphony of talents, a cascade of colors and a celebration of the human spirit. Where divine melody meets mortal devotion, there dwells the Aditya Vandana. In the ethereal realm, where verses bloom like lotus flowers and melodies flow like sacred rivers, so I request one and all to stand in honor for Aditya Vandana. सविता सूर्या खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्विश्वरेता दिवाकरः Like the stars scattered across the evening sky, great souls gather here to illuminate our path forward. Distinguished luminaries of our time, torch-bearers of wisdom, nurturers of young mind, and beloved members of our Grasim Industries, we stand at the threshold of an enchanting evening. It is our profound privilege to welcome our esteemed chief guest, Mr. Shantanu Kulkarni, the president at the unit head of SFD Grasim Industries, whose presence adds stardust to our celebration. I would like to request Honorable Principal Sir to honor him with a bouquet, a token of love and affection. Sir, please. Sir, please. Yeah. I would like to request respected Principal Sir to honor all the dignitaries of Grasim Industries. Yeah, sir, खड़ा होइए. Thank you, respected sir. From the depths of darkness to the peaks of illumination, let the eternal flame guide our journey. As the ancient sages decree, Shubham karotu kalyanam, arogyam sukha sampada, dvesha buddhi vinashaya, deepa jyoti namostute. We invoke this timeless wisdom. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते
दिव्या दिव्या रे दीपत्कार, कानी कुंडल मोती हार, दिव्याला पाहून नमस्कार, तिळाचे ते कापसाची वार, दिवा तेवे देवा पाशी, उजेड पडे विष्णू पाशी, माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी, ये ग लक्ष्मी बैस बाजे, माझं घर तुला साजे, घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे, बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे, करोति कल्याणम्, आरोग्यं धनसम्पदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते. In symbols lie the seeds of identity. In design dwells the spirit of purpose. As we stand at the cusp of transformation, witness the metamorphosis of our identity, where heritage embraces innovation and tradition dances with modernity. This is a red letter day in the school calendar as we formally applied the newly designed logo of ABHSS. I would like to invite Honorable Unit Head Sir, Mr. Shantanu Kulkarni, along with respected Principal Sir, to unveil the new school logo. Let's give a big round of applause. Definitely a proud and memorable moment for all of us. Thanks to all the dignitaries. Thanks to all the dignitaries. Our young artists will now offer their musical obeisance to the divine patron of arts and learning. Let's welcome our budding artists with a big round of applause.
fabulous. Every achievement is a star added to the constellation of our legacy. In the grand chronicle of time, each year writes its own epic. As we unfold the scrolls of our achievements, we request our visionary leader, Principal Sir Mr. Pankaj Somani, to illuminate one and all with the golden chapters of our journey for the year 2024 of Aditya Birla Higher Secondary School. A very good evening to all present here. Respected President and our Unit Head, Shri Shantanu Kulkarni Sir, Madam Pallavi, along with our FHHR, Mr. Sudhir Kumar Singh Sir and Mrs. Singh, all the other dignitaries of SFD, and special thanks to HR to Chemical Division who has accepted our request very last minute. My dear colleagues, Mr. Sunil Singh Sir, Principal ABPS, and Madam Shikha Saxena, Principal ABSSS, and all my dear proud parents along with the students. It's a proud moment for me to present once again the data of ABHSS which I have presented almost a year back. We have got a chain of works which we have achieved, the targets which were being given to us, and the expectations which the parents have expected. All the things were being concised in a very short form. I'd like to start the things from the academics. In the session 22-23, in comparison to 23-24, the school has got again its annual result of class 10th and 12th. The very first thing is that we have got a shift of almost 20% up in our result. And it's a gracious moment for us. I want that everybody should applaud these students because it is their result which have made us a memorable. Indeed, as we reflect our another academic year with a focus on academic excellence, personal development and community values, our students have been noticed excelling in diverse areas ranging from academics to sports, art and social responsibilities. The board results of class 12th is also quite amazing. There's a shift, and again the point is here that we have gained from the previous session to this session. The students who have brought laurels to us is Miss Monica Sahani and Miss Anushka Sahani topped the school and brought laurels by scoring 93.80 and 91.80 in class 10th, while in class 12th Master Rohit Rathore scored 92.20 and Master Prakhar Malve scored 91.40 respectively. In commerce streams, Miss Harshita Panchal scored 91% and Miss Swati Sharma scored 88%. Here it is important to mention that 45 students for Academic Excellence Awards in 23-24 has been selected, and this reflects a jump of 21% in comparison to the previous year. They are going to receive 25,000 rupees cash prize from the government of Madhya Pradesh. In this academic session, we have got the guest, that is the visit of our RH, Dr. Manoj Gupta. ABHSS fraternity has privileged to welcome him. In the month of April, he had a round of institutions and scrutinized everything thoroughly. He had interactive sessions with students and staff members and briefed them accordingly. Einstein has very aptly said, intellectual growth should commence at birth and cease only at death. Training is really not an expense, but an investment in human capital.
The initiative to empower the human resource has been put in the topmost priority by the management, targeting 52 hours training in a session. To implement this vision on practical grounds, several teachers training programs and workshops have been conducted during this session. Some of them are National Education Policy 2020, Maths Workshop, Anubhav, an initiative by Aditya Birla Group, Multi-Model Approach at Preparatory Level, Technological Development Program, Training on Pedagogy, Smart Class Training, and Awareness Program on POXO. Two additional subjects have been introduced in 23-24 is that KAKA, Children Against Child Abuse, and Mind Matters. This curriculum has been implemented from LKG to class 12th. Our 3 faculty members have been specially trained to teach these subjects. Co-curricular activities are held to develop skills and values which help students to develop confidence, shed fear, and shun shyness. In 22-23, only 26 activities were organized, while in 23-24, there's a jump of 60 activities, and this list is still going on, which includes literary activities, art and craft, music, etc. Our students also participated in activities held by various Aditya Birla Group schools such as English Skit Competition, STEM Quest, Spell Bee, English Debate, Poster Making, Canvas Quest and coding competitions. It is certainly a matter of pride to inform that ABHS has grabbed second position in ABG Inter-School Dance Competition out of 52 schools. Not only this, we don't have a STEM lab, but still we have qualified for the second level to fight for the STEM Quest quiz. All the important occasions were celebrated in the school to keep learner aware of our heritage and socio-ethos. Some of the major events were Independence Day, Rainy Day, Teachers Day, Gandhi Shastri Jayanti, Children's Day, Alumni Meet, and Christmas Day. In fact, the list will go on and it will end the entire night. I am elated to inform that our school's NSS National Social Service Wing conducts several activities for students and thus contributes not only in the creating social awareness but acts as a social reformer as well. Major highlights were visit to Goshala established by Aditya Birla Group to take care of stray cows, Ek Ped Maa Ke Naam, Swachhta Hi Ek Seva Pakhwada, separation of dry and wet waste, water conservation, and girls' education. ABHSS provides opportunities to all the participants and students to participate in the activities of their own choice for holistic development, and thus no one feels alienated. In order to foster overall development, apart from academics, school made certain clubs such as sports, dance, music, rhythm, and eco. These clubs provide platforms for students to explore and develop new skills and cultivate sense of community. It is necessary to inform that these clubs run in morning before school hours. And I am proud to announce that in sports club we have got 58 students, in rhythm 14, music 12, dance 35, digital 11, and eco club has got 50. Overall 180 students are participating in these clubs early before the school starts. Sports are not just games. They are the arenas where today's heroes and values are forged. Therefore, school promotes several games such as track and field events, saucer, kabaddi, kho-kho, dodgeball, cricket, badminton, table tennis, and chess. I am glad to inform that Ms. Garima Srivastava was selected for state kabaddi team organized in Patna in November 2023. Ms. Raksha Pawar of class 12th was selected for attending pre-national weightlifting camp held in Sihor in the month of December 23. Some of our students represented school at division level. Ankit Mahananda in badminton, Garima Srivastava and Shori Sahani in kabaddi. In weightlifting, Master Aditya Solanki and Ms. Khushi Soni have been selected for state level. Master Akshat Raj Singh, Jayesh Soon and Nishchit Chaudhary represented school at division level in table tennis for the very first time. Similarly, in chess, Ms. Sakshi Rathod for division and Master Pratham Singh and Krishna Gujar has been selected for state level for the same.
ABHS's fraternity is proud to inform that Master Pratham Singh Thakar of class 9th A clinched second position in inter-school ABG chess competition at ABPS Ravan and got selected for All India ABG inter-school chess competition, which is going to held at Nagda. This competition is going to be a joint competition in association with ABSSS, and it is going to take place in the month of December. Giving topmost priority to health, social and as well as hygiene, school organized medical examination camp for all the students from class nursery to 12th in association with Jama Wellness. To enable students to decide career keeping in view interest and aptitude, online career counseling program was organized by Aditya Birla Group Schools for the students of class 9 to 12. Class-wise principal parents meeting was organized in which parents had one-to-one interaction with principal on various issues. For the current session, the PPM is going to organize in the month of December. School vision is not only to upgrade but also to monitor reflection on students' overall development. Our labs, library and sports rooms are now upgraded and their utilization is monitored regularly. I am delighted to inform that earlier labs were restricted to class 9th and 12th, but currently they are being utilized by all the classes, right in from class LKG to class 12th, following all SOPs for the safety and security. Our future course of action is going to have a lot of things, but some of the things which we have targeted is to opening a humanities stream, which is the most awaited one for the Nagda people, and thus from session 25-26 ABHS is going to have humanities on board. We're going to have the installation of playstations for the students, and some of the more smart classes will be implemented in the coming years. In the last session, while reading out school annual report, I did mention that we have been passing through transition period. Radical changes have been brought right from academics to amenities. Our achievement in all the arenas such as academics, sports, art, etc. have been testament to our commitment to excellence. Our vision is to make our institution a leading learner community of motivated staff, students engaged in realizing and exploring the limits of their full human potential to graciously contribute to the society. With this visionary approach, I rest my words and convey my deepest thanks to all the stakeholders whose gracious presence and motivates us to continue with this wonderful, joyful journey. Thank you very much and enjoy the Dhaga, the bond of togetherness. Thanks, sir, for an insightful journey of ABHSS. Wisdom speaks not in whispers, but in the resonating words of those who have walked the path of excellence. Prepare to embark on a journey where emotions weave tales, where bonds transcend time, and where the eternal dance of relationships unfolds through our presentation. Let's delve deep into the Dhaga, a bond of togetherness. Thank you and enjoy. मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह
जगाया करते थे। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पे था, अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे फुरे कद्दावर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। बाबूजी, पिता और पापा, ये सभी संबोधन त्याग, निष्ठा और अनुशासन का पर्याय है। प्रस्तुत कहानी परिवार के आधार स्तंभ पिता को समर्पित है, जिनका ऋण किसी भी तरह से चुकाना असंभव है। किस्सा तोता मैं न बोलूं, 12 मन की धोबन वाला, बीरबल की खिचड़ी ठीक, दास्तान में लैला मजनू, किस्सा तोता मैं न 12 मन की धोबन, बीरबल की खिचड़ी, दास्तान में लैला मजनू। क्या सुनोगे? थोड़ा थोड़ा मीठा हो, थोड़ा थोड़ा प्यारा हो, दुनिया का हो मगर दुनिया से प्यारा हो। थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा। वैसा वाला किस्सा अगर सुनाओ तब तो जाने जिसे याद रखे तुमको जानी। नहीं यार, क्यों? वैसे वाला किस्सा पॉलिटिकल नहीं है।
वैसे वाला किस्सा पॉलिटिकल नहीं है, वैसे वाला किस्से में रिलीजन नहीं है, वैसे वाला किस्से में रिलीजन नहीं है, ह्यूमन लिबरेशन पे डिस्कशन नहीं है, आने वाली पोलिंग का डिसीजन नहीं है, ना तो दंगे की खबर है, अच्छा है यार, देश मुल्क में कितने मर गए ना ही इसका कोई जिक्र है, चाहिए भी नहीं, नारेबाजी है नहीं और फिक्रबाजी है नहीं, तो क्या सुनोगे खाक? अरे बोला थोड़ी सी हो गुदगुदी, थोड़ा सा हो चटपटा, थोड़े थोड़े आंसू हो पर ज्यादा ना हो अटपटा, वैसा वाला किस्सा न सुनाओ तब तो जाने जिसे याद रखे तुमको जानी। ओके तो लो सुनो शुरू होती है ये कहानी, लो सुनो शुरू होती है ये कहानी, बात ज्यादा है नहीं ये पुरानी, बात ज्यादा है नहीं ये पुरानी, लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ, खुशियाँ लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, बधाए अपनों को अपनों से मिलाने, सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार, बधाई हो दिवाली की बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई, जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली, बधाई हो दिवाली की बधाई, बधाई हो दिवाली की बधाई।
खूब एंजॉय करेंगे। चल बाय, मिलते हैं फिर शाम को। तुम सारे समय फोन पर ही लगी रहती हो। आज दिवाली का दिन है, कितना काम है और फिर मुझे जाना भी है। थोड़ी मेरी हेल्प करो ना। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। मुझे शाम को उसके घर जाना है। कहीं नहीं जाओगे तुम। वैसे भी शाम को तुम्हारे पापा का फोन आएगा तो उन्हें क्या कहूंगी मैं? मम्मी, हम सबका पहले से ही प्लान बना हुआ है। अरे, तुमने सुबह से अभी तक ब्रश नहीं किया? तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो ना। मम्मी कह रही थी अभी तुम्हें मार्केट भी जाना है। मैं सब कर दूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ दोनों। पापा के जाने के बाद से तुमने अपनी इतनी मनमानी शुरू कर दी है कि सुबह होते ही तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मम्मी, आप पापा की बात तो करो ही मत। हाँ मम्मी, वो श को श तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हमेशा श को स ही बोलते हैं। अच्छा, तुम इतने बड़े हो गए हो कि पापा में भी कमी निकालने लगे हो। कमी की बात नहीं है मम्मी, पर पापा को हमारा ध्यान ही कहाँ है। पिछले बहुत समय से उन्होंने हमें कोई पॉकेट मनी भी नहीं पहुंचाई और वो आपको भी तो रुपए गिन गिन कर ही भिजवाते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता पापा इतने रुपए कमा करते क्या है। बचत, पापा को सेविंग्स में इंटरेस्ट है ना, इसलिए वे पैसे बचाते हैं। अच्छा, तो इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर ने तुम्हारी स्कूटी फाइनेंस की थी, तब बचत का क्या? मेरी स्कूटी उन्होंने फाइनेंस नहीं की थी, वह तो मैंने अपनी सेविंग से ली है। बस करो दोनों, बहुत हो गया तुम्हारा झगड़ा। मम्मी, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस एग्जाम के बाद मुझे एमबीए करने बाहर जाना है। पैसे की व्यवस्था कहाँ से करनी है या आप खुद देख लेना। और मुझे भी तो मेरे फ्यूचर के लिए देखना होगा, इसलिए मुझे भी बाहर जाना ही है। तुम दोनों की जो भी डिमांड है ना, तुम मुझसे मत बोलो, तुम अपने पापा से ही बोलना। पापा से बोलना तो आप ऐसे कह रही हो जैसे पापा हमारे साथ ही है। पापा तो हमेशा साथ ही है बेटा, दिल की नजरों से देखो अभी दिख जाएंगे। तुम भूल गई जब पापा अमेरिका जा रहे थे और तुमने उन्हें रोका था, तब उन्होंने क्या कहा था? क्या मम्मी? पापा ने कहा था मैं मेरी गुड़िया रानी के लिए गुड़िया लेने जा रहा हूँ। हाँ मम्मी, याद है। सुंदर से गुड़िया के बाजार
घबराने लगी। भूल गई तुम बचपन में पापा तुम्हें क्या क्या कहकर बुलाते थे। इतने वर्ष जीवन के मैंने हम कैसे निकाले ये तुम लोगों को नहीं पता, तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल था वहां तुम सबके बिना रहना, तरस गया था मैं तुम सबसे मिलने के लिए। हाँ पापा, हम भी आपके बिना यहाँ बहुत अकेले थे। पापा, आप हमारे लिए अमेरिका से क्या लाए हैं? क्या लाए हैं? मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आ गया। क्या इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? तुम दोनों ने पापा से आते ही अपनी डिमांड शुरू कर दी। पापा को कम से कम सांस तो लेने दो, अभी अभी तो आए हैं, थक गए होंगे वे। पापा, मेरे दोस्त रवि के पापा जब दुबई गए थे तो उसके लिए आईफोन लाए थे। आप मेरे लिए क्या लाए हैं? बेटा, तुमने अभी तक अपने पापा को जाना ही कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ लाए बिना ही आ जाएंगे? सुनीता, जरा बैठ लाना। ये बोली सोना बेटे के लिए बहुत है। वाह, थैंक यू पापा, थैंक यू। और क्या क्या लाए हैं आप मेरे लिए? बस कुछ नहीं। बस और कुछ भी नहीं? ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। मम्मी, ये टॉप बहुत कलरफुल है, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। मैं यह बिल्कुल नहीं पहनूंगी। आप इसे राधा की बेटी को दे देना, मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा मत बोलो काव्या, देखो पापा कितने शौक से लाए हैं तुम्हारे लिए, उन्हें बुरा लगेगा। पहन लो। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं पहनूंगी। उसे नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं उसे दूसरे ड्रेस दिलवा दूंगा। मम्मी, मम्मी देखो देखो, पापा मेरे लिए शर्ट नहीं झोला लाए हैं, झोला। इसमें तो मेरे जैसे दो लोग समा जाएंगे। जाओ जल्दी अंदर जाकर चेंज कर लो। सुनीता, बच्चों को इतने समय बाद देखा मुझे अंदाज ही नहीं आया बच्चों के कपड़े के साइज का। हाँ ना, कोई बात नहीं, ठीक ही तो है। आप थक गए होंगे ना, मैं घर के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ सुनीता, मसाला चाय बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ की मसाला चाय पिए। और हाँ, चाय पीकर सब जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे और खाना भी भारी खाएंगे। पर पापा, मैंने तो अपनी फ्रेंड को पहले ही बोल रखा है लंच के लिए बाहर जाने को, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। तो क्या हुआ, तुम बोल दो मेरे पापा आए हैं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाऊंगी। ये कैसी जिद कर रही है? बिल्कुल आप ही पर गई है, बहुत जिद्दी है। ठीक है चले जाना, पर हाँ स्कूटी धीरे चलाना। स्कूटी? तुमने इसे स्कूटी चलाने की परमिशन क्यों दी? और ये स्कूटी आई कहाँ से? हम उनको बताने ही वाले थे, पर बच्चों ने बोला हम पापा को सरप्राइज देंगे। बहुत जिद कर रही थी। उसने जिद की पर तुमने दिला दी। तुम्हें तो पता नहीं था ट्रैफिक। पापा, मेरी सभी सहेलियां स्कूटी चलाती है, और तो और अब मम्मी ने भी स्कूटी चलानी सीख ली है। प्लीज ना पापा, प्लीज प्लीज पापा, जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना, मना मत कीजिए। पापा मैं जा रही हूँ, बाय पापा। बेटा सुनो तो, मैं संभल में जाना। बच्चे तुम सच में बहुत बदल गए। पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। सच बोलूं तो आप सूरज के समान हैं, जो एक दिन ना हो तो अंधेरा छा जाए। चलो चलो, मस्का मत करो। ये वर्ड तो सब व्हाट्सएप के हैं। वर्ड्स भले ही व्हाट्सएप के हैं, पर फीलिंग्स तो मेरे बेटे की हैं। पापा, आगे का क्या प्लान? क्यों ना इस बार हम सब भी आपके साथ चले? बेटा, अभी तो तुम लोगों की पढ़ाई है और मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी ही इस बारे में कुछ सोचेंगे। क्या पापा, आपके बिना घर लगता है नहीं? आप भी यही रुक जाइए ना। पापा, मैं मार्केट जाऊं, पूजा का सामान लाना है। हाँ बेटा जाओ, लेकिन सीधे घर ही आना। वो क्या है ना सुनीता, बच्चों को कहीं जाने देने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चे बड़े हो गए और फिर सबको अपने अपने काम भी तो हैं। अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, और फिर मैं तो हूँ ही ना आपके साथ। सुनीता,
जितना भी कुछ समय मिलता उसमें भी तुम सबको ही याद करता रहता। हेलो हेलो मैडम, आप आई नहीं अब तक? यहाँ सभी मेहमान आ गए हैं। नमस्ते भाई साहब, सॉरी पर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मेरे हस्बैंड बहुत लंबे समय बाद घर आए हैं। लेकिन मैडम, यहाँ सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए ना, मिसेस शर्मा को बुलवाकर प्रोग्राम स्टार्ट करवा दीजिए। क्या हुआ सुनीता? किसका फोन था? कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। बताओ तो, किसका फोन था? कहाँ जाना था तुम्हें? एक्चुअली मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है। गरीब बच्चों की मदद करते हैं वो लोग। मैं वहाँ की अध्यक्ष हूँ और आज वहाँ एक प्रोग्राम है जिसके लिए मुझे वहाँ जाना था। ये एनजीओ का ज्वाइन किया तुमने? आप यहाँ थे नहीं। बच्चे भी सारा दिन कॉलेज और कोचिंग में बिजी रहते थे। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। तब मिसेस शर्मा ने मुझे इस एनजीओ को ज्वाइन करने के लिए कहा और मैंने ज्वाइन कर लिया। इससे मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खैर छोड़ो, सुनो, इतना इम्पोर्टेंट काम है तो तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, आप भी तो इतने समय बाद आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, काम इम्पोर्टेंट है और वहाँ सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चली जाओ। ठीक है, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है सुनीता, तुम होकर आओ। खाली खाली घर बड़ा अजीब सा लगता है। पहले जब मैं ऑफिस जाता था तब सभी मना करते थे कि अब छुट्टी ले लो। जब मैं अमेरिका जा रहा था तब भी सब मुझे रोक रहे थे। लेकिन आज जब दिवाली का त्योहार है, मैं इतनी दूर से घर आया हूँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सब भूल गए हैं और एक मन है कि एक पल भी किसी को भूलना नहीं चाहता। सच, ये मन बहुत से सपने संजोता है। छोटा सा
एकदम चंगा अभी। क्या बात है भाई, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब? कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। वास्तव में मैं तो अचानक ही आ गया ना, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, इसलिए सब अपने अपने काम पर निकल गए। काम पर निकल गए? कहाँ? और तुम भी तो इतने दिन बाद आए हो, तो फिर कहाँ? एक्चुअली सुनीता को एनजीओ जाना था और पहले से कुछ प्रोग्राम तय था। और काव्या के अपने फ्रेंड से लंच पर चली गई। हितेश भी मार्केट गया है। वैसे सब आते ही होंगे। भैया कैसा चल रहा है आपका काम? आपके सारे दिन का स्केड्यूल क्या रहता है वहाँ? भाभी, वहाँ पे मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अपने काम में थोड़ा बहुत कुछ समय मिलता, उसमें भी आप सबको ही याद करता रहता हूँ। सुनीता, तुम कहाँ गई थी? भैया इतने दिनों में आए हैं, तुम्हें रुक जाना था, वे अकेले थे। हाँ माधवी, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम्हारे भैया माने ही नहीं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। नमस्ते अंकल। खुश हो बेटा, तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो गए। बेटा क्या चल रहा है आजकल? अंकल, मेरे मेडिकल का फाइनल ईयर चल रहा है, बस कुछ महीने और फिर प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और निधि बेटा, तुम्हारा क्या चल रहा है? अंकल, मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया है और अभी मैं दर्पण अखबार के लिए काम कर रही हूँ। वेल डन बेटा, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपने अपने गोल भी अचीव कर लिए हैं। हाँ भैया, बस यही तो कमाया है हमने। बच्चों का भविष्य बन जाए, हमें फिर कोई चिंता नहीं। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरे बच्चे भी ऊंचे मुकाम हासिल करें, पर खैर छोड़ो। आंटी, काव्या और हितेश कब तक आएंगे? क्या बात है, आज तो घर में बड़ी रौनक लग रही है। और पत्रकार साहिबा, अब क्या कार्य सफेद करने वाली हो आप? हितेश, ये काला सफेद तो हमें करना ही पड़ता है, और फिर हमारी ये खबरें ही तो हैं जो सबके झूठ और सच का पर्दाफाश करती हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। अरे भाई, ये बैठे बैठे गपशप करने से अच्छा है कि हम सब मूवी देखने चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं, बड़ा मजा आएगा और इसी बहाने सभी साथ भी रह लेंगे। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। आपके साथ नहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी, आप पापा को समझाओ ना, मैं आपको छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि उन्हीं की पसंद का पहनूं या उन्हीं की पसंद से रहूं। मेरी अपनी भी तो कोई पसंद है। हाँ मम्मी, आपको पता है पापा जब से आए ना, हमारी तो फ्रीडम ही खत्म हो गई। आपको पता है पापा सोसाइटी के बच्चों से मेरे बारे में पूछ रहे थे और यह भी पूछ रहे थे कि क्या तुम मेरे बेटे के फ्रेंड हो? अब मम्मी आप ही बताओ, ऐसा क्या अच्छा लगता है? हितेश, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? नेहा, तुम्हें नहीं पता, पापा मुझे 2 चुटकियां बनवाने को बोल रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इतने बड़े होने के बाद कौन बनाता है ऐसी चुटकियां? सुनीता, तुम्हें नहीं लगता काव्या का भी बहुत बदलता जा रहा है? छोटा बड़ा सही गलत कुछ नहीं देखती, बस बहस करने लगती है। छोड़िए ना, उसकी उम्र ही ऐसी है, और फिर आप इतने समय बाद मिले हैं तो वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अपने पापा के साथ कौन सा एडजस्टमेंट करना होता बच्चों को? नवीन, क्या तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं है भैया, बच्चे तो हमेशा साथ रहना ही पसंद करते हैं, और कहीं जाना भी होता है तो साथ ही जाते हैं। ऐसा करते हैं हम यही घर पर ही पार्टी करते हैं। हाँ, ये ठीक है, और डिनर भी सब साथ ही करेंगे। इंतजार किसका है फिर? लगाओ कोई अपना वाला गाना। जमाने वालों
जैसे तैसे ही रहना है, ओ एक जिंदगी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिखरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिखरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। लम्हे शरारत को सजाने देंगे अपनी खुशी में गम, आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। लम्हे शरारत को सजाने देंगे अपनी खुशी में गम, आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। कौन नहीं सुधरेगा? और ये क्या गाने लगा रखे हैं? हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, कोई हमारे जमाने के गाने लगाओ। हाँ आंटी, अब आपकी पसंद का गाना लगाते हैं।
पे लगे रहना ठीक नहीं है बेटा, थोड़ा मुझसे भी बात करो। 1 मिनट पापा, मैं अभी आता हूँ। अरे हितेश, तुम्हारे NRI पिता यही है ना? तुमने उनसे कुछ डॉलर्स ली या नहीं? देखो मौका अच्छा है, डॉलर्स लूट लो। वैसे भी बैंक से रोज फोन आ रहे हैं, वो रिकवरी एजेंट पैसा मांग रहा है और बोल रहा था अगर पैसा समय पर नहीं मिला ना तो। अच्छा सुनो, आज रात को मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है, तुम टाइम पर आ जाना। और हाँ, घर से कुछ बहाना करके आना, क्योंकि पार्टी रात भर चलेगी। हितेश, ये किस पार्टी के बारे में बात चल रही है और ये कर्ज कैसा? नहीं पापा, कुछ नहीं, वो तो यही मजाक कर रहा है, उसकी ऐसी ही आदत है। नहीं हितेश, जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो। ये पार्टी करने के लिए तुम लोगों के पास पैसा आता कहाँ से? सच सच बताओ, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं पापा, मुझे खुद नहीं पता वो किस पार्टी के बारे में बोल रहा है, वो तो यही मजाक कर रहा है। चुप हो जाओ, झूठ बोल रहे हो तुम। इसका मतलब इतनी बार तुम रात रात में पढ़ने का बहाना करके अपने दोस्त के यहाँ जाते थे, तो क्या वहाँ हमेशा पार्टी करते थे? सुनीता, हितेश राह भटक चुका है, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। हितेश, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप घर तक क्यों आ गए? अभी आप जाइए, मैं आपसे कल बात करता हूँ। मेरा पैसा कब दे रहे हो ये बताओ। बहुत हो गया तुम्हारा, अब या तो तुम हमारे पैसे दो वरना घर खाली कर दो। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। कौन है हितेश? ये किस बात का पैसा मांग रहे हैं तुमसे? बताओ अपने पिता को कि कौन है हम और किस बात का पैसा मांग रहे हैं तुमसे, ये भी बताओ। पापा, मैंने उनसे कुछ उधार लिया था और वह मुझे इन्हें वापस करना है। ये लोग इसीलिए आए हैं। उधार? किस बात के लिए? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ी तो तुम्हें इन लोगों से उधार लेना पड़ा? नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं बात करता हूँ इनसे। बताओ, हाँ बताओ ना कि क्यों लिए थे तुमने हमसे पैसे उधार और कर्ज कितना बढ़ गया है ये भी बताओ। प्लीज आप अभी जाइए ना। सर, मैं बताता हूँ आपको, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते इसने इतनी उधारी कर ली है कि अब इसके पास चुकाने को पैसा ही नहीं है। इसने हमसे कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन ना तो हमारे पैसे चुका पाया और ना इस तरह से कोई बात की। हितेश बेटा, क्या ये सच है? सच? आप सच की बात कर रहे हैं? जब हमने इसे कहा तुम हमारे पैसे दो वरना हम तुम पर एक्शन लेंगे, तब जानते हैं क्या किया इसने आपके मकान के कागज हमारे पास गिरवी रख दिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, बकवास हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने बेटे से पूछिए, यही बताएगा आपको सच्चाई। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अपने मकान के पेपर गिरवी रखे इनके पास? हाँ पापा, ये सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने सब मजबूरी में किया। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझ पर इतनी उधारी हो चुकी थी, मैं उनके पैसे कहाँ से चुकाता? अब तो इतना जाना आपको, अब या तो आप हमारे पैसे चुकाइए वरना घर खाली कर दीजिए। ठहरिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है सर, आप मुझे सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ। थैंक यू सर। सुनीता, मैंने इनको तो रवाना कर दिया, पर अब साहब जाके हिसाब करना बाकी है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी इसी वक्त तुम इस कागज पर लिखो कि मैं अपने पापा की जायदाद और घर छोड़कर 7 दिन के अंदर जा रहा हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, तुम इस लायक ही नहीं कि तुम्हें माफ किया जाए। और हाँ, अगले संडे तक तुम इस घर को छोड़कर चले जाना, नहीं तो बाप को दानव बनने में देर नहीं लगेगी। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से। अब समझ में आया मुझे कि आसपास के लोग क्यों मुझसे बार बार पूछ रहे थे
हितेश का सब ठीक तो चल रहा है ना? उस दिन तो नेहा और निधि भी पूछ रहे थे कि आंटी हितेश आजकल कुछ अपसेट सा क्यों रहता है? देखो परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ इससे। आपकी यही प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर इन सब गलतियों के जिम्मेदार आप हैं पापा, आप। क्या मैं जिम्मेदार हूँ? गलत आदतें तुम्हारी, गलतियां तुम करो, जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ पापा आप, क्योंकि आप हमें डॉलर भेजने के बजाय वहां अपनी बचत करते रहे और हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो उधारी करनी पड़ी। चुप हो जाओ, पापा से इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। माँ आप मुझे चुप मत करो। जब मेरी उम्र थी 7 महीने की, तब तो पापा अमेरिका जा बसे और बस वहीं से हालचाल पूछते रहे। इन्होंने हमसे कभी पूछा हमारे शौक क्या है, हमारी जरूरतें क्या है? कुछ गलत नहीं किया मैंने। हमारे साथ ना तो आपका डर था ना दोस्ती। जवान लड़का अपनी प्रॉब्लम अपने पापा के साथ शेयर करता है, पर मेरे पापा को तो मेरे लिए समय ही नहीं था। तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ चाहिए था तो तुम्हें बोलना था। इसके लिए तुम्हें गलत कदम उठाने की क्या जरूरत थी? इस उम्र में बच्चों के पिता उनके हीरो होते हैं, पर मेरे पिता तो अमेरिका में बिजी थे। हमारे सभी डिसीजन हम खुद ही लेते रहे। पापा के साथ हमारा कोई डिस्कशन ही नहीं। अकेले रहते रहते ही बड़ा हो गया और भटक गया। इसमें मेरी क्या गलती? चुप रहो, बहुत बोल चुके हो तुम। हम खुश थे, बहुत खुश थे यहाँ अपनी जिंदगी में। आप क्यों चले आए पापा फिर से यहाँ? आप दिल पर मत लीजिए इसकी बातों को। सुनीता, मैं क्या सोचकर आया था वापस और मैं क्या देख रहा हूँ? जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। आंख मूंद करके जो बैठ से जाओगे, सोचते हो क्या तुम नजर नहीं आओगे। आंख मूंद करके जो बैठ से जाओगे, सोचते हो क्या तुम नजर नहीं आओगे। देखना है जिनको वो तो देख लेंगे ही कभी, सन्नाटे को सूंघ लो थोड़ा सा मौका है अभी। बाग में बगीचे में कमरे के बंदर घेरे में, उससे बचकर कहाँ छुपोगे जिसके हो तुम घेरे में। बैठा है तुम्हारी वो हर बात में बाबू, क्या कर लोगे तुम ऐसे हालात में बाबू। देता है जो आहट को वो जानता है अंदर हो, दरवाजे की झिल्ली से पहचानता है अंदर हो। दिल पर रखकर हाथ कहो कि हमको डर लगता नहीं, ऐसा वैसा कुछ हो सकता हमको पर लगता नहीं, हमको पर लगता नहीं। हो जाएंगे होश मुलाकात में बाबू, धुएं पे हुआ है किसी का कभी काबू। जकड़े हो क्या क्या तुम हाथ में बाबू। भाई तुम मेरी एक हेल्प करोगे क्या? वाह, तो तुम्हें आज मेरी जरूरत पड़ ही गई। बोलो क्या काम है? तुम मेरा ये बैग नीचे ले चलोगे क्या? अच्छा, तो पापा ने तुम्हें मोटर जाने की हाँ कर ही दी? नहीं भाई, वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? सुनो, तुम मम्मी से बात करो, मम्मी जरूर कोई तरीका निकाल लेगी, पर तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। जब से पापा आए हैं ना, मम्मी ने तो अपनी टीम ही बदल ली है। तो मुझे अपना फोन दो, मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करना है। मेरा फोन तो पापा ने रख लिया है अपने पास और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं क्या बताऊं, मैं खुद कितनी मुश्किल में हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। फिर मैं अब क्या करूं? मुझे देर हो रही है, एयरपोर्ट पहुंचना है। ये बैग किसका है? पापा, ये काव्या का बैग है। क्यों, काव्या कहाँ जा रही है? मेरा एजुकेशनल टूर है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। नहीं, काव्या झूठ बोल रही है, ये घर छोड़ के जा रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। सुनीता, सुनीता, क्या हुआ? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ये बच्चे इतनी मनमानी करने लगे हैं कि अपने फैसले खुद ही लेने लगे हैं। क्यों, क्या हुआ? सुनीता, मैंने तो सोचा था, हमने तो स्ट्रगल किया है तो हमारे बच्चे ना करें, इसलिए हमने पूरा फ्रीडम दिया, और तुम जा
जानती हो इसने क्या किया? इसने कॉलेज का भी रेगुलर अटेंड ही नहीं किया। और सुनो, आज अब ये घर छोड़कर जाना चाहती है। जानती हो क्यों? क्योंकि इसने हमसे पूछे बिना मुंबई में जॉब एक्सेप्ट कर ली है और उसी से एडवांस लेकर इसने स्कूटी फाइनेंस कराई है। पढ़ाई की जगह सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है तुम्हारी बेटी। तो इसने क्या गलत किया है? मैं भी हमेशा से ये सपना देखती रही कि मैं जॉब करूं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए काम करूं। पापा, अगर कॉलेज के साथ साथ मैं जॉब कर रही हूँ तो इसमें आपको या मम्मी को क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बात हुई? 18 साल तक तो आपके माता पिता ने आपकी जरूरतें पूरी की, उसके बाद फ्रीडम के नाम पर ये कि आप अपना देखो, हम अपना देखें। मम्मी, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, इसलिए मैं जॉब करने मुंबई जरूर जाऊंगी। आप अपनी सेविंग्स करते रहिए, आपके काम आएगी। तुम काम करना चाह रही हो या हमें भी जिम्मेदार साबित कर रही हो? बस करो काव्या, किन सेविंग्स की बात कर रही हो तुम? वो जिनके लिए इसने इतनी तकलीफें उठाई, तुम्हें आराम की जिंदगी देने के लिए इसने अपने सारे शौक दफन कर दिए। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। मुझे चुप मत करो। पूरी जिंदगी ट्रेन में धक्के खाता रहा ये। कभी इच्छा भी हुई तब भी होटल में खाना नहीं खाया। तुम लोगों के लिए मकान खरीदा जिसकी EMI वो अब तक भर रहा है। और तो इतने समय तक वो तरसता रहा घर आने को, पर नहीं आया, ताकि उन सेविंग से वो तुम दोनों के सपने पूरे कर सके। ये सब इन्हें बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। पर दोस्त, यही तो गलती की तुमने। बच्चों को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे माता पिता क्या संघर्ष कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को हमेशा से असलियत बताई है। मैं आज तुमसे बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या जरूरत थी तुम्हें घर से इतनी दूर जाने की? जरूरत थी तो जरूरत थी। अगर मैं आज ये सब नहीं करता तो बच्चे भी हमारी तरह स्ट्रगल करते रहते और मैं ये नहीं चाहता था इनके सपने पूरे हो सके। बस यही सब सोचकर मैंने निर्णय लिया था दूर जाने का, घर से दूर जाने का। पर मैं ये नहीं जानता था कि दूर जाते जाते सबके मन से भी दूर चला जाऊंगा। सर, हमारे पैसों को क्या हुआ? क्या उनका इंतजाम हो गया? हाँ, ठहरिए, मैं अभी आपका हिसाब कर देता हूँ। सुनीता, जरा चेकबुक लाना। लीजिए। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। ये कौन था और ये सब क्या है? कुछ नहीं, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। नहीं, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चलो ठीक है, आज का प्रोग्राम हम कैंसिल करते, कल मिलते। ठीक है नवीन, मिलते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। आज अपने ही घर में अजनबी हो गया हूँ मैं। घर आने के लिए मैं ऑफिस में बोलकर आया, मेरे लिए मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ आकर देखा तो हाल ही कुछ और है। जिस उम्र में बच्चे अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उस उम्र में वे खुद एक प्रॉब्लम बन गए हैं। आप आज यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने इन बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं की। मैं तुम्हें कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। सुनीता, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। दिशा का नाम
चुप सो जाए सो जाए। सुनीता, सब ठीक है ना? और बच्चे क्या कर रहे हैं? ये कृष्णकांत कहाँ है? उसने हमें फोन करके बुलाया था। मुझे कल बुलाकर कहाँ चले गए थे तुम? कुछ जरूरी काम आ गए थे, बस उन्हें ही पूरा करने गया था। नवीन, मैंने अमेरिका वापस जाने का निर्णय लिया है। अमेरिका जाने का? कब? और आपने तो कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। हाँ सुनीता, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। आज रात की ही फ्लाइट है। देखिए, मैं अब माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाते निभाते थक गई हूँ, और फिर यूँ अचानक यहाँ भी तो। बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। सभी को अपने अपने फैसले लेने का अधिकार भी है। बच्चों ने अगर अपने भविष्य को लेकर कुछ सोचा है तो इसमें गलत क्या है? बस
यही सोचकर मैंने कुछ फैसला किया है। ये पेपर्स तुम अपने पास संभाल कर रखो। पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? देखो, तुम्हें भी घर की सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हितेश, हितेश। हाँ पापा, मुझे याद है, मेरे 7 दिन पूरे हो गए, मैं जा रहा हूँ घर छोड़। नहीं, तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम MBA करना चाहते थे ना, मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। पापा, आप कितने अच्छे हैं। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार बनो। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें ही घर संभालना है। पर पापा, आप क्यों जा रहे हैं? हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज आप रुक जाइए। काव्या बेटा, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तुम्हारी आगे की पढ़ाई बाकी है। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्किल्स को और डेवलप करो और उसी में अपना फ्यूचर बनाओ। पर पापा, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। गलतियां बच्चों से ही होती हैं और फिर माफी की बात ही नहीं है। बेटा, तुम समझ गए हो, बस यही काफी है। फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली ऑफिस से मुझे बार बार कॉल आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। वो मुझे प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी डबल दे रहे हैं। मुझे अब जाना ही होगा। अंकल, आप पापा से बोलिए ना कि वो हमें अकेला छोड़कर ना जाए। कृष्णकांत, बच्चे तो नादान होते हैं, तुम्हें सही राह पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। पर यूं अकेला छोड़कर बार बार जाना ये ठीक नहीं है। परिवार को अगर पैसों की जरूरत है तो उतनी ही तुम्हारे साथ की भी जरूरत है। मम्मी, आप पापा को रोकिए ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। आप रुक जाइए ना। पापा प्लीज, आप हमसे नाराज मत होइए, आपके बिना हम अधूरे हैं। गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान समझो जरा, छोड़ो गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबान को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। नाराज हो I'm
जरूरत है। आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे? मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं, पर पापा एक बार, बस एक बार मेरे कहने से प्लीज पापा रुक जाइए। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ना। दोस्त, आपसे एक सीक्रेट शेयर करनी है। कुछ जिद, कुछ बातें बनवानी है। अपने जीवन में आपके स्पर्श को महसूस करना है। आपके साथ जीकर जीवन के हर अभाव को भरना है। We love you पापा। आप कहीं मत जाइए। आप रुक जाइए। लगता है मुझे जाने नहीं दोगे। थैंक यू पापा। ये हुई ना बात। अरे भाई, क्यों आए हो? अब क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है सर। आपने जो हमें चेक दिया था उसमें अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा आ गया था, वही रिटर्न करने आया हूँ। फिर ठीक है। अच्छा तो यूं समझाओ ना। तो ये फसाना था, यही थी कहानी। ये फसाना था, यही थी कहानी। बात ज्यादा थी नहीं ये पुरानी, बात ज्यादा थी नहीं ये पुरानी। तो खत्म होती है अब ये कहानी। जानी कहानी तो बहुत बहुत टॉप थी, हमको बताओ मगर एक बात। जानी कहानी तो बहुत बहुत टॉप थी, हमको बताओ मगर एक बात। मरते हैं कितने मुल्क में रोज रोज बाबू लोग, किस किस को रखेंगे याद। मरते हैं कितने मुल्क में रोज रोज बाबू लोग, किस किस को रखेंगे याद। ठीक 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 भूल जाओ रे बाबू, किससे कहानी की तो बात और है। ठीक 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 भूल जाओ रे बाबू, किससे कहानी की तो बात और है। मिलता सुकून है कहीं से तो ले लो रे, आया बड़ा ही खराब दौर है। मिलता सुकून है कहीं से तो ले लो, आया बड़ा ही खराब दौर है। हम तो बाबू तुम्हारे ही है, जिंदगी की उलझनों के मारे ही है। आए हैं किस्सा सुनाने यहाँ, थोड़ा हंसाने रुलाने यहाँ। फिर भी जो गलती हुई हो तो बाबू बंदे तुम्हारे हैं, माफ कर दो। फिर भी जो गलती हुई हो तो बाबू बंदे तुम्हारे हैं, माफ कर दो। लेकिन हमारा है आज का जो नारा, जाने से पहले जरा सुन लो। नाचो रे बाबू तुम अकेले भाई रे। नाचो रे बाबू तुम अकेले भाई रे, हमको मिला है बहाना। झांझर बजाओ जरा लहरा के गाओ, मेरे होठों पे आया तराना। झांझर बजाओ जरा लहरा के गाओ, मेरे होठों पे आया तराना। आएंगे आएंगे हम तो निपट लेंगे बाद में, आएंगे हम तो निपट लेंगे बाद में। रंग है अभी तो जमाना, अभी सुनाओ कोई अभी बजाओ, मेरे होठों पे आया तराना। झांझर बजाओ जरा लहरा के गाओ, मेरे होठों पे आया तराना। झांझर बजाओ जरा लहरा के गाओ, मेरे होठों पे आया तराना। As pearls of wisdom await to cascade from experience, we turn our attention to our distinguished chief guest, Honorable Unit Head Sir, whose journey inspires and whose words shall kindle the flames of aspiration. I would like to request Honorable Unit Head Sir. गुड इवनिंग। प्रारंभी विनंती करो गणपती विद्या दया सागरा, अज्ञानत्व हरवणी मद बुद्धि दे आराध्य मोरेश्वरा। यहाँ उपस्थित सम्माननीय अतिथि, विद्यार्थी, शिक्षकगण और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित सभी पालक, सबसे सर्वप्रथम मैं आज ये यहाँ पे जो प्रस्तुति हमको देखने को मिली है, धागा, द बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, इसके सभी
सहभागी जितने विद्यार्थी है, उसके पीछे जिन लोगों ने भी कार्य किया, जिसकी संकल्पना बनाई, जिसने इसके पूरे प्रयास किए, सभी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और उनको बधाई। जो भी यहाँ पे आप सब लोगों ने अपना प्रदर्शन दिया, उसके पीछे की आपकी भावना, आपके जो प्रयास, हम उस सभी का अनुभव कर सकते थे और निश्चित रूप से वो बहुत अभिनंदन के पात्र है। इतने छोटे उम्र में कुछ खास जो भी छोटे छोटे बच्चों का भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन देखा, उन लोगों बहुत मेहनत से और लगन से अपनी तैयारी का यहाँ पे हमको प्रदर्शन दिखाया और सभी और उनके पालक और उनके शिक्षक सभी निश्चित रूप से अभिनंदन और श्रेय के पात्र है। जो धागा है या बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस है, इसकी खासियत ये है कि ये परिवार को तो निश्चित रूप से सफल बनाता है। जितने भी सफल और अच्छे हम लोग परिवार देखते हैं तो उसमें ये जरूर टुगेदरनेस की जो फीलिंग है, वो फीलिंग उसका एक महत्व हमको बताती रहती है। ये टुगेदरनेस जो है, इस परिवार को जितना जरूरी है वैसे ही संस्था को भी जरूरी है। जैसे अभी अगर स्कूल की बात करें तो वहाँ पे भी टीचर का बॉन्डिंग, स्टूडेंट का बॉन्डिंग और जो यहाँ जितने भी स्टाफ है या उनके पालक, सभी का टुगेदरनेस जो अपने संस्था के प्रति होना चाहिए और उसके कारण संस्था या हम लोग बोले स्कूल, वो अपने नए नए माइलस्टोन्स को हासिल कर पाता है। सिमिलरली ये जो टुगेदरनेस है, वो फीलिंग हमारे समाज में भी और राष्ट्र के निर्माण में भी ये बहुत अहमियत और बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आज यहाँ पे जो भी एक टुगेदरनेस और धागा के नाम पे यहाँ पे प्रसिद्धि हुई, उसमें हम लोगों का पुनः ये टुगेदरनेस के बॉन्ड को, उसकी अहमियत दर्शाई। इसके लिए मैं स्कूल का अभिनंदन करता हूँ। जो पंकज जी ने स्कूल, उसके पहले जो पंकज जी ने स्कूल के बारे में एकेडमिक परफॉर्मेंस और बाकी जो स्कूल की एक्टिविटी है उसके बारे में भी जो हमको जानकारी दी, निश्चित रूप में ये स्कूल अपने आगे के प्रयास में और ऊंचाई हासिल करे, अपने विद्यार्थियों को गौरव का स्थान बनाने में मदद करे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय। Sir, for your profound reflection. It will linger into our hearts as motivational words for the longer span of time. Let's have a showdown of live screening. हम क्यों चले उस राह पर, जिस राह पर सब चले। चले उस राह पर, जिस राह पर सब ही चले। क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। उदास नजरे उदास दिन भर नहीं, कर आस पास दिन रात आह भरना और बेकरार रहना। ये खेल ही बेकार है, कुछ भी नहीं अंगार है। इस आग में जले क्यों, पल पर जिए मरे क्यों। हम क्यों चले उस राह पर, जिस राह पर सब चले।
ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। उदास नजरे उदास दिन भर नहीं, कर आस पास दिन रात आह भरना और बेकरार रहना। ये खेल ही बेकार है, कुछ भी नहीं अंगार है। इस आग में जले क्यों, पल पल जिए मरे क्यों, हम क्यों चले उस राह पर, जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। Gratitude is the memory of the heart, finding voice through words. As the curtains prepare to descend on this magical evening, we gather the pulse of appreciation to honor those who transformed our vision into reality. Respected dignitaries, esteemed teachers, dear parents and beloved students, I Poonam Soon, the head girl, and I Sahitya Sen, the head boy of Aditya Birla Higher Secondary School. It gives me an immense pleasure to propose the vote of thanks on this memorable occasion of our school's cultural event, featuring the theatrical presentation, Dhaga, a bond of togetherness. First and foremost, I extend our deepest gratitude to our distinguished guests from Grasim Industries for gracing this occasion with their presence. Your valuable time and support mean a great deal to our institution and have made this evening truly special. To our cherished parents, thank you for your wonderful patience and enthusiasm while watching the show. Your constant support and encouragement are what makes such events possible and successful. I would like to express my heartfelt appreciation to our nurturing navigator, respected principal sir, and our dedicated staff members who worked tirelessly behind the scenes. Your guidance and commitment have shaped this production into the masterpiece we witnessed today. We cannot forget our indispensable decorative team and digital team. Our decorative team and digital team who ensured smooth backstage operations from setting up the stage to managing the technical aspects. Your behind the scenes efforts were crucial to the success of this evening. A special mention goes to our talented students, the participants who brought Dhaga to life on this stage. Your performance during the rehearsals, your dedication during the performance, and the teamwork have been truly exemplary. Who contributed to the stage preparation, lighting, sounds, costumes, and countless other aspects. Your attention to the detail has made today's production truly professional. Last but not least, I thank each one of you in the audience for being here today and making this event memorable with your presence and appreciation. Let the echoes of this evening resound in the chambers of your hearts. Let the magic of this confluence of cultures illuminate your path forward. As we bid adieu to this enchanted evening, we carry with us not just memories, but the fragments of eternity woven into the fabrics of our shared journey. Thank you all once again for making this cultural evening a grand success. Now it's time to raise yourselves for the national anthem. All of you, please stand by your places.
all the participants along with the student council members to come forward for the group photo session.